اور زی نیوز پھر اسی مدے پر بحث کے لیے سامنے آ گیا ہے اور میں ان تمام مسلم بہنوں کو زی نیوز کی طرف سے یہ بات ایک بار پھر سے یاد دلا دوں کہ آپ جب تک انصاف نہیں پا لیتی ہیں تب تک اس بحث کو ہم آگے بڑھائیں گے، تب تک یہ سوال ان سبھی لوگوں سے پوچھتے چلے جائیں گے کہ کیا ضرورت ہے اس وقت ٹرپل طلاق جیسی کوپرتا کی۔ انسلا نے الزام لگایا کہ اوشو کا آشرم آدھیاتمک کیندر نہ ہو کر سیکس کا اکھاڑا تھا۔ وہاں یہ بھی لکھتی ہیں وہ کہ ایک آدمی مہینے میں 90 الگ الگ مہیلاؤں کے ساتھ سیکس کرتا تھا۔ اس پر آپ کھرا کھرا کیا کہیں گے؟ کھرا تو یہی ہے کہ نا، یہ نیا کیا ہے اس میں؟ یہی تو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا جی، وہاں 90 مہیلاؤں کے ساتھ ایک آدمی سیکس کرتا تھا۔ یہ تو 90 کیا، وہاں تو چھوٹ تھی کہ چاہے کوئی 200 کے ساتھ کرے، یہ تو کھلے عام تھا، وہاں کوئی پابندی نہیں تھی۔ آپ کا جب جی چاہے، جتنا جی چاہے، جس کے ساتھ جی چاہے اس کے ساتھ سیکس کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں یاسر ندیم الواجدی سرجیکل اسٹرائک کی 10ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کل اگر آپ چند گھنٹے بھی نیوز چینلز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان چینلوں کا ایک کامن ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولنا۔ کبھی دھرم پریورتن کا مسئلہ، کبھی بیف کا مسئلہ، کبھی وندے ماترم کا مسئلہ، کبھی فتوے کا مسئلہ، اور آج کل مسئلہ ہے ٹرپل طلاق کا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں اگر پرابلمز کی کوئی جڑ ہے تو وہ صرف مسلمان اور ان کا پرسنل لا۔ حالانکہ یہ سارے مسائل اور یہ سارے ایشوز کرسچن کمیونٹی کے ساتھ بھی ہیں، جین کمیونٹی کے ساتھ بھی ہیں، ان کے ہاں بھی اپنے طور طریقے ہیں، ان کا اپنا پرسنل لا ہے، ان کے نکاح اور طلاق کا نظام ہے۔ لیکن اگر میڈیا کو کسی سے پرابلم ہے تو وہ ہے مسلم کمیونٹی اور ان کا لائف اسٹائل۔ مسلمانوں کے خلاف میڈیا نے یہ جو جنگ چھیڑی ہے، اس میں سب سے آگے ہے زی نیوز، اور اس کی وجہ ہے کہ زی نیوز کا مالک سبھاش چندرا، چونکہ اس وقت راجیہ سبھا کا ایم پی ہے اور بی جے پی نے اس کے اوپر راجیہ سبھا میں اس کو بھیج کر ایک بڑا احسان کیا ہے، تو بہرحال اس احسان کا بدلہ بھی چکانا ہے۔ اس لیے زی نیوز کا دن رات کا یہ ایجنڈا ہے، اس میں اگر کوئی ٹاک شو ہو رہا ہے تو وہ اسی بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے ہیوملیٹ کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے یہ احساس دلایا جائے کہ ان کے پاس جو سسٹم ہے، ان کے پاس جو مذہب ہے اور ان کی جو شریعت ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ آج کے دور میں چل سکے۔ یہ ایک آئیڈیالوجیکل وار ہے جو میڈیا نے اور خصوصاً زی نیوز نے مسلمانوں کے خلاف شروع کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی توجہ جو اصل ایشوز ہیں اس سے ہٹ چکی ہے۔ اس وقت یہ ٹاک شوز نہیں ہو رہے ہیں کہ ملک میں کسان خودکشی کیوں کر رہے ہیں، ٹاک شوز پرائم ٹائم اس بات پر نہیں ہو رہا ہے کہ ملک میں اسٹوڈنٹس خودکشی کیوں کر رہے ہیں، ڈی مونیٹائزیشن کے باوجود کرپشن اپنی جگہ کیوں ہے، اور اس بات پر تو گفتگو کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے کہ پہلے کے مقابلے میں مستقل مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو اس ملک کے ایک ایک آدمی کو پریشان کیے ہوئے ہیں، لیکن میڈیا نے جو ماحول بنا دیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ 1 ارب 20 کروڑ لوگ اگر کسی چیز سے متاثر ہیں تو وہ ہے ٹرپل طلاق کا مسئلہ۔ ملک کی یہ ذہنیت بنانے میں اگر کسی چینل کا سب سے بڑا کردار ہے تو وہ ہے زی نیوز، جس نے اس کیس کو اپنے لیے پرسنل مدعا بنا لیا ہے۔ آج کی سرجیکل اسٹرائک شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا جان لیجئے کہ اگر دنیا میں کبھی فیک نیوز کے تعلق سے رینکنگ ہوئی کہ کون سا چینل سب سے زیادہ فیک نیوز دکھاتا ہے تو شاید زی نیوز نمبر 1 پر ہوگا، اور یہ بات میں انڈیا کے حوالے سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے تعلق سے کر رہا ہوں۔ زی نیوز پر ایک شو آتا ہے ڈی این اے۔ یہ ڈی این اے شو دراصل این ڈی اے یعنی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس، جو اس وقت بی جے پی کا الائنس ہے، یہ دراصل اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ڈی این اے میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ این ڈی اے سے متعلق ہوتی ہے اور این ڈی اے کی جو پالیسیز ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو میں ایک کلپ دکھاتا ہوں، اگرچہ یہ کلپ کچھ پرانی ہے۔ 2015 میں ملک میں ایک ایشو اٹھا تھا کہ ہندوستان میں کتنا زیادہ انٹالرنس ہے، اور اس میں زی نیوز سب سے زیادہ اس بات کے اوپر اڑا ہوا تھا کہ اس ملک میں انٹالرنس نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آپ اس رپورٹ کو دیکھیے، یہ مختصر سی کلپ ہے، اس کو دیکھیے اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ زی نیوز اسٹیٹسٹکس بنانے میں بھی کتنا ماہر ہے۔ امریکی سنستھا پیو ریسرچ نے دھارمک آزادی کو لے کر حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت دنیا کے ان دیشوں میں شامل ہے جہاں کے سب سے زیادہ لوگ
धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। यह रिसर्च 5 अप्रैल से 21 मई 2015 के बीच किया गया था। रिसर्च के नतीजों के मुताबिक भारत में हर 10 में से 8 लोग धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। अमेरिकन फाउंडेशन प्यू रिसर्च सेंटर की ये रिपोर्ट आज भी ऑनलाइन है। हमारा मसला यही है कि न्यूज़ चैनल के ऊपर जो भी जहर उगला जाता है, जो भी डाटा दिया जाता है और जो भी मालूमात फराहम की जाती है, हम उसको आंख बंद करके तस्लीम कर लेते हैं और कोई आदमी वेरिफिकेशन की कोशिश नहीं करता। प्यू रिसर्च सेंटर की वेबसाइट मौजूद है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट मौजूद है। 2015 की रिपोर्ट भी है, 2016 की भी है और 2017 की भी है। एंकर के मुताबिक वो प्यू रिसर्च सेंटर की 2015 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि मुल्क में इंटॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि हर 10 में से 8 लोग मजहबी आजादी के पक्ष में हैं। मुझे यह ख्याल हुआ कि हो सकता है 2016 में कुछ जादू हो गया हो, 2017 में कुछ चमत्कार हो गया हो कि 1 या 2 साल के अंदर अंदर पूरे मुल्क की सूरत हाल बदल गई हो और इंटॉलरेंस टॉलरेंस में बदल गया हो। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि 2015 की ही रिपोर्ट निकाली जाए। 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक प्यू रिसर्च सेंटर ने 198 मुल्कों का सर्वे किया और उसमें जो शॉकिंग रिजल्ट्स आए हैं उसमें हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है वो कुछ यूं है कि हिंदुस्तान रिलीजियस वायलेंस के ताल्लुक से दुनिया का 4था सबसे खराब मुल्क है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रिलीजियस हॉस्टिलिटीज की बुनियाद पर हिंदुस्तान को जिस कैटेगरी में रखा है वो कैटेगरी है वेरी हाई, यानी इस मुल्क में मजहबी बुनियादों पर एक दूसरे से नफरत बहुत ज्यादा है। हुकूमत की तरफ से मजहबी आज़ादी के ऊपर पाबंदी की बुनियाद पर हिंदुस्तान को जिस कैटेगरी में रखा है वो है हाई। इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में भी मजहबी आज़ादी के ऊपर हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर और मुनज़्ज़म तौर पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ये एक छोटी सी मिसाल है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जी न्यूज़ किस तरीके से आंकड़े भी गलत बयान करता है। लेकिन जो सच है वो सच है, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन बहुत से लोग झूठे आंकड़े जरूर पेश करते हैं। जी न्यूज़ का दावा है कि वो मुस्लिम औरतों के इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कर रहा है और इस चीज का एतराफ जी न्यूज़ के एक शो में चैनल की एक एंकर ने खुद किया है कि हम ट्रिपल तलाक से मुतासिर मजलूम मुसलमान औरतों के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करते रहेंगे, जिससे अंदाजा होता है कि जी न्यूज़ ने इस इशू को एक पर्सनल मुद्दा बना लिया है। आप खुद देखिए कि जी न्यूज़ की एंकर क्या कहती है। और जी न्यूज़ फिर इसी मुद्दे पर बहस के लिए सामने आ गया है और मैं उन तमाम मुस्लिम बहनों को जी न्यूज़ की तरफ से ये बात एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप जब तक इंसाफ नहीं पा लेती हैं तब तक इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, तब तक ये सवाल उन सभी लोगों से पूछते चले जाएंगे कि क्या जरूरत है इस वक्त ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा की। बज़ाहिर देखने में लगता है कि वाकई काम बहुत अच्छा है और मैं समझता हूं कि दुनिया की जितनी भी मजलूम औरतें हैं और खुसूसन मुसलमानों में जो मजलूम औरतें हैं उन्हें जी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मजलूम कौन? अभी कुछ दिन पहले जी न्यूज़ ने एक वीडियो वायरल की थी जिसमें एक मुसलमान औरत ट्रिपल तलाक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और वो अपने मजहब को बदलने की और हिंदू बन जाने की मुसलमानों को धमकी दे रही है कि अगर मुसलमान ट्रिपल तलाक खत्म नहीं करेंगे तो ऐसी मुसलमान औरतें हिंदू बन जाएंगी। किच्छा की रहने वाली इस महिला ने कहा है कि ट्रिपल तलाक झेलने से अच्छा है वो हिंदू धर्म स्वीकार कर ले। ये वीडियो जी न्यूज़ ने वायरल की जिसको लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद एक दूसरे चैनल ने उसी औरत की एक और वीडियो दिखाई जिसमें वो एतराफ कर रही है कि मुझसे किसी ने कहा था ये बयान देने के लिए, इसलिए मैं मजबूर होकर मैंने ये बयान दिया है। आप खुद देखिए। कल बोला उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पूरे इस्लाम धर्म से, पूरे मुसलमानों से मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक मुसलमान हूँ और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। जो मैंने शब्द बोले वो मेरी मजबूरी थी जो मैंने बोला। किसी ने बुलवाया था क्या ये बात तुमसे? ये बात हाँ भैया, मुझसे किसी ने बुलवाया था, वो मुझसे किसी ने बुलवाया ही था भैया। अब ये जी न्यूज़ वाले बताएंगे कि वो कौन था जिसने इस औरत को मजबूर किया, किस बुनियाद पर मजबूर किया और क्या लालच देकर मजबूर किया कि ये औरत कैमरे के सामने आई और इसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और मुसलमानों को धमकी दी कि वो अपना मजहब तब्दील कर लेगी। इसलिए हमारा जी न्यूज़ से ये कहना है और जी न्यूज़ के साथ साथ जितने भी हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स हैं उनसे कहना है कि आप इंसाफ के लिए ज़रूर लड़िए, इसलिए कि मीडिया का सबसे बड़ा मकसद
इंसाफ की आवाज बुलंद करना ही होता है, लेकिन इंसाफ उन लोगों को दिलाने की कोशिश कीजिए जिन्हें दरअसल इंसाफ की जरूरत है। हम हरगिज ये नहीं कहते कि ट्रिपल तलाक कोई बहुत अच्छी चीज है। ट्रिपल तलाक एक समाजी बुराई है और जो मुसलमान भी अपनी बीवियों को ट्रिपल तलाक देते हैं वो यकीनन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराजगी का सबब बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इंसाफ के असल हकदारों को नजरअंदाज करके ऐसी औरतों को खड़ा किया जाए जो इस्लाम के खिलाफ बोलें और मुसलमानों को अपना मजहब तब्दील करने की धमकी दें, तो इससे अंदाजा होता है कि न्यूज चैनलों की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है और ये न्यूज चैनल्स इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने के अपने एजेंडे के ऊपर मुस्तकिल और दिन रात काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि हिंदुस्तान में वो कौन सी औरतें हैं जो इंसाफ की हकदार हैं और जिनके हक में हमें और आपको और इसी तरीके से मीडिया को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, इन सब को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 17 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जिनमें से तकरीबन 50% औरतें हैं। इसका मतलब यह है कि 8.5 करोड़ मुसलमान औरतें हैं। इन 8.5 करोड़ औरतों में 43% औरतें ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, यानी 3.6 करोड़ औरतें शादीशुदा हैं। मुसलमानों में जो तलाक का रेशियो है वो हर 1000 औरतों में 5 औरतें ऐसी हैं कि जिनको तलाक हो जाती है। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 2 लाख औरतें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनको डिवोर्स हो चुकी है। लेकिन इन 2 लाख औरतों में जिनको डिवोर्स हुई है, सारी वो औरतें नहीं हैं कि जिनको ट्रिपल तलाक दी गई है, बल्कि बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं कि जो ट्रिपल तलाक को ट्रिपल तलाक नहीं बल्कि एक ही तलाक मानती हैं। बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि जिनको तलाक दी ही नहीं गई है बल्कि उन्होंने खुद खुला लिया है, और बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि जिनको इंस्टेंट तलाक नहीं दी गई है बल्कि एक महीने में एक तलाक, फिर दूसरे महीने में दूसरी तलाक और फिर तीसरे महीने में तीसरी तलाक दी गई है। इसलिए हम खींचतान कर भी माने कि जो औरतें ट्रिपल तलाक से मुतासिर हैं उनकी तादाद 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी। अब आइए हिंदू कम्युनिटी का भी थोड़ा सा जायजा लेते हैं। इस मुल्क में तकरीबन 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। अगर औरतों की पॉपुलेशन 50% माने तो तकरीबन कमोबेश 50 करोड़ औरतें इस मुल्क में रहती हैं। इन 50 करोड़ हिंदू औरतों में भी 43% ऐसी औरतें हैं कि जिनकी शादी हो चुकी है, यानी शादीशुदा औरतों की तादाद 21.5 करोड़ है। हिंदुओं में जो सेपरेशन रेट है वो हर 1000 में 5.5 है, जबकि मुसलमानों में जो सेपरेशन रेट है वो हर 1000 में 5 है। इस एतबार से ऐसी औरतें जो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी हैं उनकी तादाद तकरीबन 8 लाख बनती है। अब ये औरतें जो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी हैं उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनके केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। कुछ औरतें ऐसी भी हैं कि जो खुद अपने हस्बैंड से सेपरेशन चाहती थी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दी है, ना कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को। और कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो अपने हस्बैंड से सेपरेट तो हो चुकी हैं, लेकिन ये सेपरेशन हस्बैंड की तरफ से हुआ है, वाइफ की तरफ से नहीं हुआ है। यानी लीगली वो अभी अपने हस्बैंड के ही निकाह में हैं, लेकिन हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया है। मान लीजिए कि इन 8 लाख औरतों में आधे केसेस उन औरतों के हैं कि जिनको उनके हस्बैंड ने सिर्फ छोड़ा हुआ है, लेकिन लीगली वो अभी भी उन्हीं मर्दों की बीवियां मानी जाती हैं। जैसे हमारे पीएम मोदी साहब हैं तो उनकी बीवी यशोदा बहन आज भी मिस्टर मोदी की लीगल वाइफ हैं, लेकिन मोदी जी ने अपनी वाइफ को कब छोड़ा था वो खुद ही जानते हैं। अगर ऐसी औरतों की तादाद आधी भी हुई तो इसका मतलब यह है कि ये तकरीबन 4 लाख के करीब ऐसी औरतें हैं कि जिनका फ्यूचर न उनको पता है, न उनके हस्बैंड को पता है और न ही अदालतों को। लिहाजा अगर मुसलमानों में एक औरत ऐसी है कि जो ट्रिपल तलाक से मुतासिर हुई है, तो हिंदू कम्युनिटी में 4 औरतें ऐसी हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट की वजह से जिनका फ्यूचर अनसर्टेन है, हिंदू मैरिज एक्ट की वजह से उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और वो जिंदगी भर अकेले रहने पर या दूसरों का सहारा बनने पर या सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हैं। वो एक मुसलमान औरत के जिसको ट्रिपल तलाक दे दी गई है, यकीनन ये एक समाजी बुराई है जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन कम से कम उसके सामने ये ऑप्शन है कि अगर उसके हस्बैंड ने उसको परेशान किया है, उसको घर से निकाल दिया है, 3 तलाक़ें देकर उसको अपनी जिंदगी से अलग कर दिया है, इसके बावजूद भी उसके सामने एक रास्ता यह है कि वो किसी दूसरे के साथ शादी कर ले। लेकिन वो 4 लाख औरतें कि जो किसी दूसरे मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती हैं इसलिए कि वो अभी भी अपने हस्बैंड की लीगल वाइफ हैं और कोर्ट से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनका क्या? यहां मेरा मीडिया से सवाल है कि इंसाफ की किसको जरूरत है? उन 4 लाख औरतों को कि जिनका फ्यूचर अनसर्टेन है, जिनको यही पता नहीं है कि आगे हमारे साथ क्या होना है और क्या नहीं, या उन 1 लाख औरतों का कि जिनके बारे में हमने अस्यूम किया है कि उनको ट्रिपल तलाक दी गई है?
बल्कि मैं इससे आगे बढ़कर यह कहना चाहूंगा कि मुसलमानों में सिर्फ ट्रिपल तलाक ही समाजी बुराई नहीं है, बल्कि एक तलाक देना भी समाजी बुराई है। अगर हम 2011 की सेंसस रिपोर्ट उठाकर देखें तो उससे पता चलता है कि मुसलमानों में तलाक का जो रेशियो है वो है 0.56%, जबकि हिंदुओं में 0.76%। इन आदाद और शुमार को, इन आंकड़ों को और इन स्टैटिस्टिक्स को सामने रखिए और फिर बताइए कि इंसाफ की जरूरत किन औरतों को है। अब आइए तस्वीर का एक दूसरा रुख भी देखते हैं। तस्वीर का ये रुख बहुत दर्दनाक है, बहुत तकलीफदा है और मजहब से ऊपर उठकर यह हर उस शख्स के लिए तकलीफदा है जो अपने सीने में धड़कता दिल रखता है। आगे हम जो कुछ दिखा रहे हैं उसका ताल्लुक हिंदू मजहब से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक एक खास जहनियत से है जो हिंदुओं में पाई जाती है। हमारा मकसद किसी मजहब की तौहीन करना नहीं है, लेकिन अगर मजहब के नाम पर कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस होने लगें कि जिससे एक तबके को इंसाफ न मिले बल्कि दिन रात उसके ऊपर जुल्म किया जाता हो और उस वक्त तक जुल्म किया जाता हो जब तक वो मर न जाए, तो ऐसे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हम अपना हक समझते हैं। मैं जी न्यूज से पूछता हूं कि जहेज के मसाइल के ऊपर आपने कितने टॉक शोज किए हैं। यह एक ऐसा मसला है कि जिसके बारे में सबसे पहले 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, उसके बाद 1984 में और उसके बाद 1986 में उस कानून में अमेंडमेंट हुआ। अब ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर कानून से जराइम रुक जाया करते, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रिपल तलाक का केस चल रहा है, हो सकता है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बन जाए, लेकिन क्या ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बन जाने से ये समाजी बुराई खत्म हो जाएगी? अगर ऐसा होता तो जहेज के खिलाफ जो कानून बना है उस कानून के बनने की वजह से जहेज की जो समाजी बुराई है वो खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1990 में दिल्ली में, जो कि हिंदुस्तान की कैपिटल है, सिर्फ दिल्ली में 300 केस ऐसे हुए हैं जिसमें औरतों को जहेज के नाम पर जिंदा जला दिया गया। लेकिन टाइम गुजरने के साथ समाजी सुधार नहीं हुआ, बल्कि इस तादाद के अंदर इजाफा हुआ और 2011 में 900 केस तकरीबन ऐसे रजिस्टर्ड हुए जिसमें औरतों को जहेज की बुनियाद पर जलाया गया। 2010 में पूरे हिंदुस्तान में 8,391 केसेस ऐसे रजिस्टर्ड हुए हैं जिनमें जहेज की बुनियाद पर औरतों को जिंदा जला दिया गया। मैं मीडिया में बैठे इन ज़रख़रीद एंकरों से एक सवाल पूछता हूं कि आप हिंदू कम्युनिटी में मांगलिक के मसले पर बात क्यों नहीं करते? कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक औरत एक कुत्ते से शादी कर रही है। ये इसलिए नहीं कि उस कुत्ते को चाहती थी, बल्कि मसला ये था कि वो औरत मांगलिक थी और उस इलाके के बड़े बूढ़ों ने उस औरत को हुक्म दिया कि वो अपनी किस्मत को अच्छा करने के लिए एक कुत्ते से शादी करे। मैंने कुत्ते से शादी इसलिए की क्योंकि गांव वाले ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मुझ में जो दोस्त है वो कुत्ते से शादी करने से वो उस पर चला जाएगा। ऐसा मेरे गांव के लोग कहते हैं कि बाकी भी मेरी तरह लड़कियां हैं जिन्होंने इस रिवाज को माना है, उनके ऊपर से ये दोष हट चुका है और वो अभी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। कहीं दूर नहीं जाइए, बल्कि बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी पहले बनारस में एक पीपल के दरख्त से हुई। चूंकि इस एक्ट्रेस के बारे में यह समझा जाता था कि ये मांगलिक है, इसलिए पहले इसकी शादी एक दरख्त से कराई गई और उसके बाद उसकी शादी अमिताभ बच्चन के बेटे से कराई गई। ये चीज क्यों हो रही है? कोई क्यों ऑफर कर रहा है मुस्लिम महिला को कि आ जाइए हमारे धर्म में? क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोगों ने उस मुद्दे को ढील दी। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शोविनिज्म का, पुरुष प्रधानता का एग्जाम्पल दिया और कुछ नहीं दिया है, और इसीलिए अब इस तरीके की नौबत आ गई है कि आ जाइए, आपके यहाँ तो सब ठीक नहीं है। मुसलमानों पर एक इल्जाम यह भी है कि ट्रिपल तलाक के जरिए मुसलमान औरतों को दबाते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी एक मेल शावनिस्ट कम्युनिटी है। आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि मेल शावनिज्म कहां पाया जाता है। आप शिवलिंग की पूजा करते हो, वो अच्छा है। अभी आप 10-12 साल की लड़की से बोलते हो कि जाओ बेटा शिवलिंग पे दूध चढ़ा के आओ, आपको वर अच्छा मिलेगा। आपको पता है आप किसकी पूजा करवा रहे हो? उस बच्ची से जरा बोल के देखना, अगर हिम्मत है तो, कि आप की बॉडी का ये पार्ट है इस मेल का, ठीक है ना, जिस पे आप जल चढ़वाते हो, दूध चढ़वाते हो। मैं मान जाऊंगी आपको। जितनी भी आपकी नाबालिग बच्चियां हैं सबको बोलिए आप। मीडिया वृंदावन की लाखों औरतों के बारे में बात क्यों नहीं करता? क्यों इस ताल्लुक से कोई टॉक शो नहीं होता? क्या वजह है कि आज से 15-20 साल पहले जब बॉलीवुड ने इस इशू को उठाना चाहा
और उस मौजू पर एक फिल्म बनानी चाहिए तो कुछ ऐसे लोगों ने कि जिन्हें अपने नीचे की ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई, उन्होंने उस फिल्म की मुखालफत की और उसकी शूटिंग नहीं होने दी। क्या वजह है कि मुल्क में इस मौजू पर डिबेट नहीं हो रही है? वृंदावन में जो औरतें अपने समाज से धुतकार दी जाती हैं, घरों से निकाल दी जाती हैं, वो बेवाएं कि जिनको समाज दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं देता, ऐसी औरतें कि जिनको उनके हस्बैंड छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं और वो किसी दूसरी जगह शादी नहीं कर सकती हैं क्योंकि समाज और कल्चर ही ऐसा है, ऐसी औरतों के साथ वृंदावन में क्या होता है आप खुद देखिए। वृंदावन में घटना घटी थी कि विडोज मर जाती हैं तो उनको काट के बोड़े में बंद करके फेंक दिया जाता है। विवाह शादी में क्या, कोई विडो है तो उनको किनारे रखें, भाई सामने ना आए, कहीं जा रहे हैं तो सामने विडो न पड़ जाए। तो बचपन में विधवा हो गई, उनका क्या दोष है? समाज उनको छोड़ देता है, अशुभ मानता है। तो बताए ना कि उन लोगों का दुख है, देखे कलेजा फटने लगता है। कुछ भी है तो हमने तो उसी को पति मान के बनाए हैं ना, उसी को पति मर गए फिर भी हम उसी को पति मानते हैं। अपना धर्म है, क्या परंपरा लेकिन चला। पहले वो लोग दिन भर कथा करती थी, ये भजन करती थी, तो 4 रुपया मिलता था पर डे। 4 रुपए में उनका खाना क्या कुछ नहीं हो सकता था। Now you may call it a haven, you may call it hell, but Varanasi is the only place that's home for these widows who don't have a place in their own homes anymore. यानी वाराणसी को इन औरतों के लिए चाहे आप जन्नत कहें या जहन्नम, लेकिन वाराणसी ही एक ऐसी जगह है जो इन औरतों को रहने की जगह देता है। यह है दरअसल इस समाज का असल चेहरा, मीडिया जिसके ऊपर गुफ्तगू करने से भागता है। अब आप ही बताइए कि मुसलमानों को कटहरे में खड़ा करना और ये कहना कि मुसलमान अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं, ट्रिपल तलाक देकर उनसे इंसाफ का हक छीन लेते हैं, इसलिए हम इन औरतों के हक में आवाज़ उठा रहे हैं। हम आपको आपकी इस नीयत में उसी वक्त सिंसियर समझते अगर आप इससे पहले इन लाखों औरतों के हक में भी आवाज़ उठाते जो वृंदावन की सड़कों पर बुढ़ापे की हालत में 2 वक्त का खाना मांगती फिर रही हैं। बल्कि इससे आगे बढ़कर ऐसी भी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं कि जिससे पता चलता है कि इन आश्रमों में प्रोस्टिट्यूशन का काम भी बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन ये औरतें कि जिनको समाज ने धुतकार दिया है, जिनको उनके हस्बैंड ने उनके घरों से निकाल दिया है, उनके बच्चे उनको रखने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको प्रोस्टिट्यूशन की आग में धकेल दिया जाता है और वो उस वक्त तक उस आग में जलती रहती हैं जब तक उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए जाते। आगे मां अनसिला ने इल्जाम लगाया कि ओशो का आश्रम आध्यात्मिक केंद्र ना होकर सेक्स का अखाड़ा था। वहाँ ये भी लिखती हैं वो कि एक आदमी महीने में 90 अलग अलग महिलाओं के साथ सेक्स करता था। इस पर आप खरा खरा क्या कहेंगे? खरा तो यही है कि ना, ये नया क्या है इसमें? ये ही तो मैं पहले भी कह रहा था जी, वहाँ 90 महिलाओं के साथ एक आदमी सेक्स करता था। ये तो 90 क्या, वहाँ तो छूट थी कि चाहे कोई 200 के साथ करे, ये तो खुलेआम था, वहाँ कोई पाबंदी नहीं थी। आपका जब जी चाहे, जितना जी चाहे, जिसके साथ जी चाहे उसके साथ सेक्स कीजिए। हमारा मीडिया से सवाल है कि अगर आप वाकई इंसाफ की आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो आपने देवदासियों के ताल्लुक से अभी तक कोई शो क्यों नहीं किया? देवदासियों के हक में अभी तक आवाज क्यों बुलंद नहीं हुई? आप जानते हैं कि देवदासी किसे कहते हैं? देवदासी को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ गॉड, यानी खुदा की रखेल। 2015 के आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ 2 सूबों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 80,000 देवदासियां मुख्तलिफ मंदिरों में रह रही हैं। इन औरतों के हक में सबसे पहले आवाज डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में उठाई थी। उन्होंने मुतालबा किया था कि इस प्रैक्टिस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन उस वक्त के बरहमनी जहन रखने वाले हिंदुओं ने डॉक्टर अंबेडकर की इस आवाज को दबा दिया। अगर न्यूज चैनल वाकई मजलूम तबके के लिए इंसाफ की आवाज बनना चाहते हैं तो देवदासियां इस बात की सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं कि उनकी आवाज को नेशनल टीवी पर लाया जाए और इस प्रैक्टिस पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाई जाए। On my very first day here, I met a group of temple prostitutes who told me about this ancient Hindu system where prepubescent girls are dedicated to a goddess and for the rest of their lives they will become sex slaves of the temple. The name of that system is Devadasi. This is also one of the places where the women traffickers come and pick up potential prostitutes. The brothel madams will travel from big cities like Bombay and Pune and come to Saudati to these festivals to pick up young girls to traffic.
एक यूरोपियन खातून सैरा हैरिस ने देवदासियों के इशू पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उस डॉक्यूमेंट्री में उसने दिखाया है कि कैसे 12-13 साल की लड़कियों को देवदासी बना लिया जाता है और उनको मंदिरों में और टेम्पल्स में फेंक दिया जाता है, और इस तरीके से वहां पर वो इन मंदिरों के पुजारियों और वहां के प्रीस्ट की हवस का निशाना बनती हैं और पूरी जिंदगी बनती रहती हैं। बाकायदा कुछ इलाकों में ऐसी देवदासियों की मार्केट्स भी हैं कि जहां उनको खरीदा जाता है, उनको बेचा जाता है, उनकी ट्रेड होती है। ये सब होता है मजहब के नाम पर, ये सब होता है कल्चर के नाम पर, ये सब होता है ट्रेडिशन के नाम पर। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लाखों औरतें पूरे हिंदुस्तान में ऐसी हैं जो इंसाफ के लिए मुंह तक रही हैं, जो इंसाफ के लिए लोगों का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनके हक में आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं। और वो इसलिए नहीं चूंकि हिंदुस्तान में पूरी आबादी को मीडिया ने अगर किसी एक मसले की तरफ मुतवज्जे किया हुआ है तो वह है ट्रिपल तलाक का, और सब लोग ये सोच रहे हैं कि हर मुसलमान अपनी बीवी को 3 तलाक देता है और उसके बाद वो औरत जुल्म की चक्की में पिसती रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर मुसलमानों में ट्रिपल तलाक है और समाजी बुराई है, उसका हमें एतराफ है, लेकिन अगर रेशियो देखा जाएगा तो 1 लाख औरतें ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल तलाक से मुतासिर हैं, जबकि उसके मुकाबले में हर साल 4 लाख औरतें ऐसी होती हैं कि जिनके सामने इंसाफ के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं, न उनके पास खाने को कुछ है, न पहनने को कुछ है, और वो दर बदर भटकने के लिए मजबूर हैं। हम हिंदू कम्युनिटी के लीडरों से अपील करते हैं कि वो ऐसी मजलूम औरतों के हक में खड़े हों, और जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों में अपील जारी की है कि ऐसे लोग जो ट्रिपल तलाक का इस्तेमाल करते हैं और बेसोचे समझे अपनी बीवियों को 3 तलाक दे देते हैं, उनका समाजी बाइकाट होना चाहिए। ऐसे ही हिंदू कम्युनिटी भी मुसलमानों के नक्शे कदम पर आगे आए और ऐसे लोगों का समाजी बाइकाट करे कि जो अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं, जबकि लीगली वो उनकी बीवियां हैं, या अपनी बीवियों को डिवोर्स के बाद उनका हक नहीं देते। और ऐसी औरतें कि जिनको उनके रिश्तेदार वृंदावन जैसी जगहों में, तंगलियों में और काल कोठरियों के अंदर पूरी जिंदगी सड़ने के लिए डाल देते हैं, जिनका अंजाम मरने के बाद यह होता है कि उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर डिस्पोज किया जाता हो, तो ऐसी औरतों के हक में खड़े हों, उनके लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करें, और ऐसे लोग जो इन भयानक जराइम के अंदर मुलविस हैं उनका समाजी बाइकाट किया जाए। और मीडिया से हम ये अपील करते हैं कि जो असल इश्यूज हैं, ये जो इंसाफ के लिए औरतें मुंतजिर हैं, इनके हक में आवाज उठाई जाए। मुसलमान इस मुल्क के लिए न पहले कभी मसला थे और न ही आइंदा कभी मसला रहेंगे।